Good morning, everybody. Today I am going to give lecture on the first chapter of physical and health education, that is changing trends and career in physical education. These are the topics which I am going to cover in this chapter, that is definition of physical education, aims and objectives of physical education, development of physical education post independence, concept and principles of integrated physical education, concept and principles of adaptive physical education, Special Olympic Bharat, career options in physical education. The first topic is definition of physical education. Physical education is the education through physical activities for the development of the total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind, and soul. The term physical education, if we divide these terms in two parts, that is physical and education. So, the meaning of the term physical is related to your body. And what is the meaning of education? Education is the process of imparting and gaining knowledge. So, whatever we learn through our physical activities, the activities which is done by our body, that is called physical education. Physical education is the process of education. मीन्स जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं और उसके थ्रू जो भी हम सीखते हैं, जो भी नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एजुकेशन. और फिज़िकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है? टोटल डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड in all aspects, like perfection in body, mind, and soul. The aim and objectives of physical education. So, here two terms are there, aims and objectives. Both are different. The aim of physical education is wholesome development of an individual. Wholesome development का मतलब होता है development in all the aspects like physical, mental, social, emotional, economical, all the aspects of human life is developed with the help of physical education. So this is the aim of physical education, and the objectives are the ladder to reach to the aim. So there is difference between aim and objective. Aim is one and objectives are so many to reach to the aim. And so the objectives of physical education are physical development, mental development, emotional development, social development, development of health, neuromuscular coordination. So these are the terms. By achieving of all of them, we can reach to the aim of physical education, that is wholesome development of an individual. So let's see one by one these objectives. Number one is physical development. Foremost objective and related with physical development. Physical development is the foremost objective. सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है फिजिकल एजुकेशन का वो होता है बीइंग हेल्दी फिजिकली. So, development of organ systems such as circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system, etc. फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर में आता है जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में, उन सब का डेवलपमेंट. क्योंकि हमारा बॉडी अल्टीमेटली तभी डेवलप होगा जब हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा, हेल्दी होगा, अच्छे से काम करेगा. During physical activities, the body demands more and more from systems and organs. Yes, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आप खुद में फील कर रहे होते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हो, आपके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके बॉडी का हाई होता है. केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको एनर्जी मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आप किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाते हो. तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ forces the
ऑर्गन सिस्टम टू वर्क कंटिन्यूअसली, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंटिन्यू काम करेंगे तो उनका एक्सरसाइज होता है, और अल्टीमेटली आपके होल बॉडी का एक्सरसाइज होता है, जिससे आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। क्योंकि अगर आप डेली खाना खा रहे हो और बैठे हुए हो, आपका पूरे बॉडी से ऑर्गन सिस्टम एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में फ़ैट जमा होते जाएगा और फिर फाइनली आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा मीन्स है जो आपको प्रोवाइड करता है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ के फॉर्म में आपको एक रास्ता देता है जिससे आप फिज़िकली फिट हो सको, अपने आप को डेवलप कर सको फिज़िकली। द सेकेंड वन इज़ मेंटल डेवलपमेंट. Obviously, mental development is related to your mind. Physical activities require alertness of mind. Very true. जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपका माइंड बिल्कुल अलर्ट होना है. सपोज़ आप कोई गेम ही खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल में कब आपको किक मारना है, किसको पास देना है, कब गोल करना है, किस सिचुएशन में किधर बॉल को कैसे टैकल करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके माइंड का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है. कैलकुलेटेड मूवमेंट्स मीन्स कितने फोर्स लगाकर आपको बॉल को पास करना है ताकि जिस इंसान के पास आप चाहते हो उस तक बॉल पहुंच जाए. मीन्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड in physical activities. So physical education also provides exercise to our mind to develop our mental ability. It includes rules and regulations, techniques of games, anatomical and physiological studies, health and disease. Participation teaches to draw conclusion, to face new situation and to take decisions independently. आप जब भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे आपका क्या होता है, आपका डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि आपको कोई वहाँ बताने के लिए नहीं होता है कि आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट मूव में आपको क्या करना है. तो इससे क्या, आप खुद ही डिसीज़न लेते हो, हर एक सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, क्या डिसीज़न लेना है, ये स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और टर्म है, व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर माइंड. तो हमारे माइंड का एक हिस्सा होता है जो कि हमारे इंटेलिजेंस को शो करता है. तो डैट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम्स अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आपका जो भी इंटेलिजेंस है, आप क्या सोचते हो, कैसे कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, ऑल दीज डिपेंड्स ऑन योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो occur with the help of physical education. Social development. Physical education provides ample opportunities to its participant to interact with other individual and groups. Yes, very true. जब आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर किसी गेम्स के लिए ही, जैसे आपका रीजनल स्पोर्ट्स मीट होता है, नेशनल स्पोर्ट्स मीट होता है, तो आप जाते हो वहाँ पे दूसरे ग्रुप से मिलते हो, उनसे दोस्ती करते हो, उनके बारे में जानते हो, उनसे कुछ और रूल्स रेगुलेशन टेक्निक्स सीखते हो. तो दीज आर द मीन्स ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल और अदर ग्रुप्स. सो physical education provides these kind of opportunities to interact with other individual. This gives wholesome experience to learn social norms. और इससे आपका सिर्फ नॉलेज ही गेन नहीं होता, इससे आपको पता चलता है कि आपको दूसरों के साथ सोशल रिलेशनशिप कैसे रखना है, कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ. Individual develops social qualities and social habits. Value of competition and cooperation are also inculcated. Means आपको कैसे cooperate करना है एक दूसरे के साथ, ये भी आपको physical education सिखाता है. The next one is neuromuscular coordination. It concerned with better coordination between nervous system and muscular system. आपका जो नर्वस सिस्टम है, मीन्स आपके पूरे बॉडी में नर्व्स फैले हुए हैं जिनका काम क्या होता है,
हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन गैदर करना, कलेक्ट करना, माइंड को देना, और माइंड फिर जो भी डिसीजन लेता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, उसको वापस पर्टिकुलर मसल तक पहुंचाना। तो जो भी न्यूरॉन्स हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेकर आते हैं पर्टिकुलर मसल तक, तो मसल अगर उसको अच्छे से रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, दैट इज़ योर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, आप जब मार्च पास्ट करते हो, ठीक है, तो मार्च पास्ट का एक पैटर्न है कि अगर आप लेफ्ट हैंड आगे कर रहे हो तो आपका राइट लेग आगे आना चाहिए, मीन्स एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मसल का। तो ब्रेन कैसा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वही आपको फॉलो करना है, और अगर आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सही है तो आप सही मूवमेंट को कर पाओगे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सेम लेग सेम हैंड उठाते हैं, मीन्स उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पुअर होता है। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ जब आप करोगे तो आपका नर्वस सिस्टम एज वेल एज आपका मस्कुलर सिस्टम दोनों ही डेवलप होता है, जिसकी वजह से दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी डेवलप होता है। गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू कीप ऑफ फटीग ड्यूरिंग विगरस एक्टिविटीज़। यस, आप देखोगे जब आप मार्चिंग कर रहे हो तो आप अगर राइट लेग उठा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड उठता है, जिसमें आपको बहुत इजीली आप परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन वही अगर आप सेम हैंड सेम लेग करोगे तो आपको खुद में फील होगा कि आप एक ऑकवर्ड मूवमेंट कर रहे हो और ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रहा है आपको इस मूवमेंट को परफॉर्म करने में। तो अगर आप सही से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका सही है तो आप अपना एक्टिविटी भी सही परफॉर्म करोगे, जिससे आपका एनर्जी बचेगा और टायर्ड जल्दी नहीं होंगे। It improves working with various equipment and tools, also known as psychomotor development or coordination development. Next is emotional development. Physical education aims at emotional stability, which helps in facing any type of situation. आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इमोशंस कब कैसे कितना शो करना है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, देयर इज़ सेंटर लाइन जिसके पार आप नहीं जा सकते। आपको अपने कोर्ट में खेलना है, ओपोनेंट को अपने कोर्ट में खेलना है। सपोज़ आपको उधर से किसी ने एक स्मैश मारा, आप नहीं उठा पाए, आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गए दूसरे कोर्ट में और उसको मार दिए। आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने एंगर को कंट्रोल करते हो। तो ये सब सीखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ रेगुलर करते हैं उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है। जब आप हार जाते हो मैच फिर भी आप मुस्कुराते हो, बोलते हो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। आप सामने वाली टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो कि आपने बहुत अच्छा खेला। आपको बुरा लग रहा है फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हो, आप रोते नहीं हो, आप फिर भी मुस्कुराते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं फिज़िकल एजुकेशन में कि अपने इमोशंस को कैसे स्टेबल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ नॉलेज इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम। जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए हेल्थ डेवलपमेंट जो है, हेल्थ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम। स्पेशली इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट so that each and every student can achieve or receive the information that how they could be healthy in your home or in your school or in your life. It also speaks of health hazards in society. आपको बहुत सारे health hazards है like ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर किया जाता है। स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में इन सबको शामिल किया गया है ताकि आपको पता हो कि ये सब चीज़ें कितनी हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए। दिस नॉलेज बिल्ड्स अ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। So the second topic of this chapter is development of physical education post independence. It means after independence, that is after 1947, फिज़िकल एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुआ इंडिया में वो हम देखेंगे।
तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कमिटीज़ बने इंडिया में, बहुत सारे स्कीम्स आए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन को प्रमोट किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो और हाँ, फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड गेम्स का स्टैंडर्ड बढ़ा, कोचेस बढ़े, प्लेयर्स बढ़े, तो कैसे अवेयरनेस फैलाया गया फ़िज़िकल एजुकेशन का इन इंडिया, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, कुंजरू कमेटी, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया में डेवलप हुए आफ्टर 1947, मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. So the first one is Central Advisory Board of Physical Education and Recreation. इंडिया में जो सबसे पहला कमेटी बना फिजिकल एजुकेशन का, दैट वाज ताराचंद कमेटी इन 1948. आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर ताराचंद का नाम दिया गया हुआ है. तो डॉक्टर ताराचंद के नाम पे ही एक कमेटी बना गया जिसमें 10 मेंबर्स थे, दैट इज़ इन 1948. और उसके बाद फिर आया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसके चेयरमैन भी डॉक्टर ताराचंद थे इन 1950. द एम ऑफ द बोर्ड वॉज रिकमेंडेशंस ऑन गेम्स एंड प्रोग्राम्स, recommendations on recreational programs, proposal to government on physical education programs, suggestions on different programs for youths. Objectives of the board was advising for making PE a compulsory subject in schools. 1950 में ही ये एडवाइस दिया गया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया जाए स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में. Recommending syllabus of physical education at primary, middle and university level. Recommending syllabus of physical education in all the physical education institution of the country. मीन्स एक सिलेबस तैयार किया गया हर एक लेवल के लिए कि प्राइमरी लेवल पे क्या सिलेबस होगा, सेकेंडरी लेवल पे क्या सिलेबस होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या सिलेबस होगा, या फिर जितने भी फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा. तो एक सिलेबस डेवलप किया और उसको रिकमेंड किया गया. रिकमेंडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स. अब फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट कंपलसरी किया गया, फिर उसका सिलेबस दिया गया. तो अब उसको पढ़ाने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर भी चाहिए. तो उसके बाद रिकमेंड किया गया कि हर एक स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए. सजेस्ट चेकिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स. अब जब सब कुछ हो गया है तो फिर अगर उसका इवेल्युएशन नहीं होगा, चेकिंग नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम का क्या प्रोग्रेस है. तो ये भी सजेस्ट किया गया कि फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम का चेकिंग भी होना चाहिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्ड. डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन सेपरेटली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स वर सबमिटेड. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को इंक्लूड किया गया. फॉर्म्ड रूल्स फॉर गिविंग रिकॉग्निशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज. फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए या फिर जिनको अपना करियर फिज़िकल एजुकेशन में बनाना है उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज लाए गए. स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग एंड रिसर्च वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1950. वैसे प्रोफेशनल्स जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन में अपना करियर बना रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लाया गया ताकि वो फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में ट्रेनिंग मेथड कैसे डेवलप करना है उस पर रिसर्च स्टार्ट कर सके. फाइनेंशियल हेल्प टू द इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू प्रोग्राम नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1958. एक टेस्ट डेवलप किया गया था जिससे हमें पता चलता है कि आप फिज़िकली कितना एफिशिएंट हो, मीन्स आपका स्पीड कितना अच्छा, आपका स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, एंड्योरेंस कितना अच्छा है. जैसे आपका स्वस्थ भारत में आपका बहुत सारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑकर किया गया है स्कूल में. तो इस तरह का एक टेस्ट डेवलप किया गया जिससे हमें पता चल सके कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स आपके बॉडी में किस लेवल का है. तो ये स्टार्ट किया गया इन 1958. National Fitness Corps in
physical education was also started. Second one is All India Council of Sports. All India Council of Sports was constituted in 1954 and the chairman of this was retired General K.M. Kariyappa. The aim and functions of All India Council of Sports: to research on the games and sports by applying scientific methods. अब यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आए. 1954 से पहले 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था, दिल्ली में हुआ था 1951 में. और उसमें हॉकी के मैच में इंडियन टीम फाइनल्स में हार गई थी, वो भी पाकिस्तान से. तो इंडिया में एकदम खलबली मचा हुआ था कि आप हारे भी तो पाकिस्तान से हारे. मतलब इंडियन हॉकी प्लेयर्स को बहुत मतलब बुरा भला कहा गया कि आप कैसे हार गए, वो भी पाकिस्तान से. तो इसका जब इवैल्यूएशन किया गया, सबने रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम्स था, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो पता चला कि जो भी प्लेयर्स हैं उनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ओल्ड है, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और अच्छे कोचेस नहीं हैं ताकि उनको ट्रेन किया जा सके. तब ये डिसाइड किया गया, तब बनाया गया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड्स को रिसर्च करेंगे और अप्लाई करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ताकि हम अच्छे टेक्निक्स को डेवलप कर सकें. टू कोऑर्डिनेट बिटवीन नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सके नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी इनका सुझाव था. टू स्टार्ट वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स टू एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया. अब प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाए इन इंडिया. ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. और फिर जब ट्रेनिंग अगर हो रहा है प्लेयर्स का तो उसके बाद उनको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिले इंटरनेशनल इवेंट्स में, तभी हमें पता चलेगा कि उनका स्टैंडर्ड कितना डेवलप हुआ. अचीवमेंट ऑफ AICS. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1961. मैंने आपको बताया था उस 1951 के एशियन गेम्स के बाद पता चला कि कोचेस की कमी है, तो फिर NSNIS दैट इज़ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1961. तो ये जो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया ये बेसिकली कोचेस को तैयार करने के लिए डेवलप किया गया. यहाँ पे जो भी जाते हैं वो कोच बन के निकलते हैं, मीन्स कैसे प्लेयर को ट्रेन करना है, क्या क्या ट्रेनिंग मेथड्स कैसे फॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं NSNIS में. कोचिंग कैंप्स वर ऑर्गेनाइज्ड. स्टेडियम्स, जिम्नाजियम एंड स्विमिंग पूल्स were constructed for promotion of sports. Stress was laid for promotion of sports, especially in rural areas. रूरल एरियाज़ में ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए. क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, उनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको ये स्कोप नहीं मिल पाता है कि वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं, उनको चांस नहीं मिल पाता है. तो NSNIS और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का ये ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि वो रूरल एरियाज़ में जाएं, कैंप ऑर्गेनाइज़ करें, ट्रायल्स ऑर्गेनाइज़ करें और बच्चों को सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर उसको ट्रेनिंग देकर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनको डेवलप करें. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज़ NSNIS established in 1961 एट पटियाला, पंजाब पटियाला में ये डेवलप किया गया, ये सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था. 1 ईयर डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन वेरियस गेम्स, जिसमें 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता था कोचिंग के लिए कोई भी गेम्स में. एम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टू प्रिपेयर कोचेज फॉर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, to raise the technical standard of coaches, to make available latest knowledge in sports, to help in searching the talented sports person, to impart
proper training to sports person participating in international competitions. नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आप सभी ने नाम सुना होगा साई का. दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1984. द एम ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स. जो भी स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करना पूरे थ्रू आउट द कंट्री. एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट इन यंग एज. ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जगह ट्रायल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में, शहर शहर में. क्योंकि आप देखोगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साई या फिर साई का सेंटर होता है जो कि जगह जगह जाते हैं, टैलेंट सर्च करते हैं रूरल एरियाज से, अर्बन एरियाज से. ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्पोर्ट्स पर्सन टू यूटिलाइज एंड मेंटेन द स्टेडियम्स. इनके पास बहुत सारे स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पे ये बच्चों को सर्च करके लाते हैं, फिर उनको और ट्रेनिंग देते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर स्टेडियम में उनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं. नाउ द थर्ड टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन. इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन टर्म से ये पता चलता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि एक साथ मिले हुए हैं, सब एक साथ मिलकर बनाते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन को. इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन को हम इंटीग्रेटेड फ़िज़िकल एजुकेशन बोलते हैं. तो फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ इंटर रिलेटेड अमॉन्ग वेरियस फील्ड्स एंड इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट. फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत सारे फील्ड से इंटर रिलेटेड है. इट हैज़ सब डिसिप्लिन्स. फिजिकल एजुकेशन का सब डिसिप्लिन है लाइक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी. अब बायोमैकेनिक्स ऐसा है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मैकेनिक्स यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा लॉज उसमें एप्लीकेबल है. जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये सब आता है किसमें, बायोमैकेनिक्स में. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मीन्स जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है और कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में. काइनेसियोलॉजी स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स. काइनेसियोलॉजी में हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. काइनेसियोलॉजी. हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन आपको पता है. स्पोर्ट्स फिलॉसफी मीन्स स्पोर्ट्स का भी बहुत सारा फिलॉसफी है जो बहुत पहले एंशिएंट टाइम पे बहुत सारे लोगों ने दिया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, डैट कम्स अंडर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स पेडागॉजी. स्पोर्ट्स पेडागॉजी में हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं A to Z. स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, क्या क्या टर्म्स आते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर स्पोर्ट्स पेडागॉजी. सो ऑल दीज डिसिप्लिन्स combine together and make physical education. That's why physical education is also called integrated physical education. Principles of integrated physical education. Number 1, capable of meeting the needs of present and futuristic society. Integrated physical education program is applicable to and should involve all the people. IPE contributes to learning, cognitive and effective fitness, social, moral development of individual. जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, होलसम डेवलपमेंट करता है, तो उसी तरह इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का भी सेम कंट्रीब्यूट करता है. इट ऑल्सो डेवलप आवर कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स एबिलिटी रिलेटेड टू आवर माइंड, इफेक्टिव फिटनेस, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. IPE program develops motor skills, physical and health related fitness of the people. Motor skills का मतलब होता है the basic skills like running, jumping, walking, throwing, all these comes under motor skills. IPE program should serve as good and healthy foundation for lifetime participation.
आईपी क्या करता है, आपको इतना हेल्दी और गुड बनाता है जिससे आप लाइफ टाइम एक्टिव रह सको, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको फिजिकल एक्टिविटी में. IP is based on various sub-disciplines of physical education which are helpful to people. IP programs should be able to provide deep knowledge of physical education to the teachers as well as students. IP program से सिर्फ students ही नहीं बल्कि teachers को भी full knowledge मिलता है about physical education. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. अब यहाँ पे अनदर टर्म आया है. अभी तक आपने इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था, अब है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन उन पर्सन के लिए है जो कि डिफरेंटली एबल है किसी भी एक्टिविटी को करने में, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डिसेबल्ड पीपल, हैंडीकैप पीपल. तो इनको हम डिसेबल ना बोल करके इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल, क्योंकि वो अपना काम कर तो सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं, डिफरेंटली करते हैं, इसलिए हम उनको डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं. तो उन पीपल के लिए जो भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट कम्स अंडर एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना. तो ऐसे पीपल क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए समहाउ, है ना. जिसके पास पैर नहीं है वो पैर मीन्स आर्टिफिशियल लेग लगाकर रनिंग करता है, आपने देखा होगा. एडेप्टेड पीपल लोग के लिए भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि हम बोलते हैं पैरालंपिक. आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पैरालंपिक भी आपका एक चैप्टर है. तो ऐसे ये सारे जिसमें आते हैं इन पीपल के लिए भी फिज़िकल एजुकेशन का प्रोग्राम किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेड फिज़िकल एजुकेशन. और डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड रिदम्स suited to the interest, capacities and limitations of disabled students who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program. ठीक है. हम क्या करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा व्हील चेयर बास्केटबॉल, है ना. नॉर्मली हम लोग जो बास्केटबॉल खेलते हैं उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई कर देते हैं. लाइक बास्केटबॉल का जो पोस्ट होता है उसका हाइट नीचे कर देते हैं ताकि व्हील चेयर पर बैठ कर भी खेल सके. उसके रूल्स को ये कर सकते हैं, लाइक होल्डिंग ऑफ द बॉल शुड बी मोर देन 5 सेकेंड्स. डिस्टेंस को कम कर देते हैं. ऐसा कम करते हैं ताकि जो भी डिसेबल पीपल है उनके कैपेसिटी को देखते हुए हम उस गेम को मॉडिफाई कर देते हैं, उस एक्टिविटी को मॉडिफाई करते ताकि वो सक्सेसफुली उसमें पार्टिसिपेट हो सके. डेफनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट. डेफनेस मीन्स कंप्लीट हियरिंग लॉस. हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है. पुअर बॉडी मैकेनिक्स, मेंटली चैलेंज्ड. ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट. ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का मतलब इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू योर बोन्स. इस तरह के पीपल आते हैं एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में. सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. Involves physical fitness, motor skills, pattern recognition skills, individual games and sports for special people. तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या आता है, ये क्या करता है, फिजिकल फिटनेस डेवलप करता है एडेप्टेड पीपल का, मोटर स्किल्स डेवलप करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स, पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का क्या पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना ही फर्स्ट स्टेप है. उसके बेसिस पे ही हम फिर उस इंसान को फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. थोरो मेडिकल चेकअप ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट. जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, डिसेबल्ड पीपल का कंप्लीट मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फेस्ड बाय स्टूडेंट, जिसमें पता चलेगा कि वो किस टाइप का डिसेबिलिटी फेस कर रहा है. शुड बी डन एटलीस्ट एनुअली. और ये हर साल, कम से कम हर साल मेडिकल चेकअप होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन.
उनके इंटरेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स. अब जैसे ब्लाइंड पीपल के लिए आप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप बॉल से उनको कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हो तो वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ब्लाइंड पीपल के लिए जैसे बॉल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप बॉल के अंदर कुछ ऐसा चीज़ डाल दो जिससे बॉल साउंड करे, ताकि वो उसके साउंड से रिकॉग्नाइज कर सके कि बॉल कहाँ है और कहाँ थ्रो करना है. ऐसा करके आपको इक्विपमेंट को मॉडिफाई करना होगा एज पर देयर डिसेबिलिटी. स्पेशल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड. उनके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट होना चाहिए. लाइक सेफ्टी सबसे पहले देखना है कि वो प्लेस सेफ़ है कि नहीं. उनको जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो भी देना है. उनका जो सराउंडिंग है वो सही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि लोग उनको स्टेयर कर रहे हैं, उनको घूर रहे हैं, उनको लंगड़ा बोल के चढ़ा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. वेरियस इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड. आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उनको समझ में आना चाहिए. लाइक इन द केस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट आपको सिंबल साइंस यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकें. रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. मैंने पहले कहा था गेम्स और स्पोर्ट्स का जो भी रूल्स है वो मॉडिफाई किया जाना चाहिए एज पर देयर नीड्स. स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. पहले वो कौन सा एक्टिविटी करता था, किस में इंटरेस्ट था, ये भी हमें देखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत. It is a movement that uses sports as a catalyst to change the lives of children and adults with intellectual disabilities and mentally retarded person. अभी आपने पढ़ा एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जो कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिसेबल पीपल के लिए. तो उसी तरह स्पेशल ओलंपिक भारत भी एक कंपटीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स मेंटली रिटार्डेड पीपल, जिनका मेंटली डिसेबल जो पीपल होते हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इन 2001, accredited by Special Olympics International to conduct special Olympic programs in India, recognized by Government of India as a national sports federation in the priority category. इसका मतलब स्पेशल ओलंपिक भारत जो था उसको सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम पे जाना जाता था इन 1882, और उसके बाद फिर स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम इन इंडिया के नाम से जाना गया. बिल्डिंग एथलीट्स चेंजिंग एटीट्यूड्स. एथलीट्स को डेवलप करना और उनके एटीट्यूड, जीने के एटीट्यूड को चेंज करना. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने हर काम के लिए. तो उनके एटीट्यूड को चेंज करना कि नहीं आप भी कर सकते हो, आप भी सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हो. तो ये कैसे होता है? इम्पार्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दैट कवर्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सपोज अगर किसी का लेग नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके अपर बॉडी को इतना डेवलप करेंगे ट्रेनिंग दे करके ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ वो भी कुछ कर सकता है. क्रिएट रोल मॉडल्स. और ऐसा ट्रेनिंग करके बहुत सारे एथलीट ऐसे इंडियन एथलीट्स पैरालंपिक्स में आप देखोगे इंडियन एथलीट्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. लाइक स्विमिंग में बहुत सारे मेडल आ चुके हैं इंडिया की तरफ से पैरालंपिक्स में. तो ऐसे लोग रोल मॉडल का काम करते हैं. सेंसिटाइज टीचर्स टू द स्पेशल प्रॉब्लम्स. टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं उनको सेंस कर सके. स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट ओथ. जैसे आपका भी एनुअल स्पोर्ट्स होता है उसमें आप ओथ लेते हो, उसी तरह स्पेशल ओलंपिक का भी एक ओथ है. लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट. दिस इज द ओथ टेकन बाय द एथलीट इन स्पेशल ओलंपिक्स.
मिशन क्या है इस स्पेशल ओलंपिक भारत का? टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मीन्स पूरे ईयर इनको ट्रेनिंग दिया जाता है उस कंपटीशन में पार्ट करने के लिए। जैसे आपको पता है ओलंपिक गेम्स 4 साल के बाद एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जो भी ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट होते हैं वो पूरे 4 साल बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो मेडल अचीव कर सके। तो उसी तरह स्पेशल ओलंपिक भारत में भी पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रू आउट द ईयर उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। And athletic competitions in a variety of Olympic type sports for children and adults with intellectual disability. It will enable them to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy, and participate in sharing of gifts, skills, and friendship with their families and friends. विजन क्या है स्पेशल ओलंपिक भारत का? A movement which improves the lives of people with intellectual disability. The vision of Special Olympic Bharat is intellectual disability से ग्रसित जो भी लोग हैं उनके लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, अलाउज देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, उनको रियलाइज़ करवाना कि उनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। Develop their skills through sports training and competitions. And the last is goal, to provide chance to mentally retarded persons or person with intellectual disabilities to become useful and productive citizen who are accepted and respected in their communities. Generally ऐसा देखा जाता है जो mentally retarded people होते हैं उनके साथ सब बहुत अजीब से व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते हैं पागल है, खिसका हुआ है, मेंटल है, ऐसे बोल के उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उनको ताकि वो अपने आप को फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सके, सोसाइटी में अपना एक नाम कमा सके, इज्जत कमा सके। दिस इज़ द गोल ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। लास्ट टॉपिक इज़ फिज़िकल एजुकेशन एंड करियर ऑप्शंस। फिज़िकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है डैट इज़ टीचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन, कोचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड करियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स, करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। नाउ द नंबर 1 इज़ टीचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। तो टीचिंग करियर किस किस बेसिस पे है? लाइक एलिमेंट्री स्कूल मीन्स प्राइमरी के बच्चों के लिए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो ये सारे जो भी स्कूल के लेवल है, यूनिवर्सिटी के लेवल है, इस पे आप टीचिंग करियर में टीचिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। कोचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन, करियर एज अ कोच इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आप कोच बन सकते हो, जैसा आपके स्कूल में भी कोच रहते हैं। स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी स्टेट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उस पर भी आप कोच एज अ कोच अपॉइंट हो सकते हो, या फिर साई में भी बहुत सारे कोचेस का अपॉइंट किया जाता है। कोचिंग द प्रोफेशनल टीम्स, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है उसके लिए भी एक कोच चाहिए। कमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब, बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब है उसमें भी आप कोच एज अ कोच हो सकते हो, करियर ले सकते हो। प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक सेक्टर्स, कोचिंग इन अ नॉन स्कूल सेटिंग लाइक स्पोर्ट्स एकेडमी, बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमी होते हैं जहाँ पे कोचेस को रखा जाता है। हेल्थ रिलेटेड करियर, हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स, जैसे आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारे किसके अंडर में आते हैं? हेल्थ रिलेटेड करियर्स में आते हैं। लाइक प्लेइंग फैसिलिटी लाइक स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग, सोना बाथ होता है, स्टीम रूम्स होते हैं, मसाज, डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस, ऑल दिस कम्स अंडर हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स। एथलेटिक ट्रेनिंग, prevention of sports injuries comes under health, rehabilitation of injured athletes,
मीन्स अगर कोई एथलीट इंजर्ड हो गया है तो वो फिजियोथेरेपी के लिए जाता है, रिहेबिलिटेशन के लिए जाता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब जो भी इंजरी है उसको रिकवर करके अपना जो पहले का जो पोजीशन था उस तक पहुंचना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसका HOD बनना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड बनना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ जिम्नाजियम, फिटनेस सेंटर, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एक्वाटिक सेंटर्स, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रिक्रिएशन का भी एक सेंटर होता है। लाइक गूगल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी होते हैं सबका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में एक पूरा सेक्शन होता है रिक्रिएशन का। रिक्रिएशन का मतलब होता है रिक्रिएट करना, अपनी एनर्जी लेवल को फिर से रिक्रिएट करना, रिकवर करना विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे ऐसे माइनर और मेजर गेम्स होते हैं जो कि उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके, अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके। स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, स्पोर्ट्स फील्ड में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, किट्स है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका मार्केटिंग किया जाता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, आप एज अ प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एज अ प्लेयर आप अपना करियर बना सकते हो, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ऑल दीज आर व्हाट प्लेयर्स। पार्टिसिपेट एज प्लेयर इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। एज ऑफिशियल्स, आप ऑफिशियल्स भी बन सकते हो। कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, लाइन्समैन, रिकॉर्डर, स्कोरर, ये सारे किसके अंडर में आते हैं? ऑफिशियल्स। तो आप ऑफिशियल बन के भी अपना करियर चूज़ कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अभी का बहुत ही करेंट प्रोफेशन है। मीन्स वैसा जर्नलिज्म जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कवर करता है, स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, मैगजीन्स लिखते हैं। बुक राइटिंग, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, बुक पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे करियर्स ऑप्शन हैं जो कि कम्युनिकेशन मीडिया के अंडर में आते हैं। धन्यवाद।